Hello, dear students. Welcome back to a new channel. Students, today we are going to explore a really important question. What happens when the vice president resigns in the middle of the term? Yes, it actually happened few days ago, right? Vice President Jagdeep Dhankar stepped down, and this has raised many questions, and we are here to answer them all. Okay? Now let's begin with what exactly happened. So, 22nd July, India's Vice President Jagdeep Dhankar resigned from his post, and he gave his resignation letter to our President Draupadi Murmu. But here's an interesting part, students. He's only the third vice president. He's only the third vice president in Indian history to resign before finishing his full 5 year term. ओके इससे पहले कौन थे? वीवी गिरी एंड आर वेंकटरमन. ओके बहुत पहले की बात है ये, जब उन्होंने रिजाइन किया था. नाउ क्वेश्चन इज, व्हाई इज दिस न्यूज इंपॉर्टेंट? Because vice president of India is not just a fancy title, it's very important constitutional post. And when that post becomes empty, the constitution has certain rules about what happens next. ठीक है, तो इसके बारे में अब हम थोड़ा सा समझते हैं. अब देखो, पहले तो हम बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट होते कौन है, एंड व्हाट डज द वाइस प्रेसिडेंट डू? Well, students, you can think of Vice President as the second in command of India's government structure, like the vice captain of a team. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? According to Article 63, India must have vice president. There must be a vice president of India, and he or she is the second highest official in the country. Okay, one of the main duties of vice president is to act as the chairman of Rajya Sabha. Rajya Sabha ka chairman, which is the upper house of parliament. So during parliament meetings, the vice president runs the Rajya Sabha. He makes sure that the Rajya Sabha is in order, allows member to speak, and makes sure that the debates follow rules. Okay? So, but here's something very important. The vice president of India, students, he or she is not a member of parliament. Okay? Which means that they must stay neutral. ओके, दे आर नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको न्यूट्रल और फेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग डिस्कशन. ठीक है, न्यूट्रल और फेयर का मतलब क्या है? किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करना. ओके, सो जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट वो वोट भी करते हैं, पर कब वोट करते हैं? ओनली वोट्स इन केस ऑफ अ टाई. जैसे अगर कोई रिजोल्यूशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, उस पर वोटिंग करनी है कि कौन 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 से जो मेंबर्स हैं वो इस पर्टिकुलर बिल की प्रोविजन से अग्री करते हैं कि नहीं. तो अगर मान लो कि इक्वल है वोट्स, तो उस केस में कास्टिंग जो वोट है वो वाइस प्रेसिडेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो equal votes on both, when there's a case of equal votes on both sides, so they can cast only that time, right? Only if there's a tie. Okay, so that's pretty cool, right? And if for any reason the president of India is absent, okay, if president of India is absent, then vice president also acts as the president. So if the president dies, resigns, or is removed and is not available, the vice president acts as a president until a new one is elected. ठीक है, तो जब तक जब तक प्रेसिडेंट अवेलेबल है तो उनके जगह पे प्रेसिडेंट के रूप में वो काम कर सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं.
right? Students, vice president is elected, and it's actually different. It's quite different from normal elections that we see during Lok Sabha और assembly elections. Okay? तो कैसे काम होता है? जैसे वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है? तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से होंगे? जैसे राज्यसभा के मेंबर हो गए, लोकसभा के मेंबर हो गए. तो उन सारे मेंबर्स वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में. ठीक है? तो इलेक्टेड मेंबर्स भी और नॉमिनेटेड एमपीज भी. बट दिस इज इंपॉर्टेंट. स्टेट एमएलएस, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं, अब स्टेट गवर्नमेंट में भी लेजिस्लेचर होता है ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं, वो वोट नहीं करते. ठीक है? दे डू नॉट वोट इन दिस इलेक्शन. एंड वोटिंग इज डन थ्रू अ स्पेशल मेथड कॉल्ड proportional representation and single transferable vote. Ab, don't worry, that's a big term, right? But we'll break it down another day. For now, just remember that it ensures that every vote counts fairly. And election is held in a secret. Voting is secret. And the returning officer supervises the process, the whole process. ठीक है? अब बात करते हैं कि क्या कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है? Yes or no? No. राइट? कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हर चीज के लिए, तो वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एलिजिबिलिटी है. मीनिंग हु कैन बिकम वाइस प्रेसिडेंट? सो फर्स्ट इज, यस, ही और शी मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन and must be at least 35 years old, must be qualified to be a Rajya Sabha member. तो राज्यसभा मेंबर बनने के वो क्वालिफाई होने चाहिए. शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट की स्टेक्स है, उस पर्टिकुलर जॉब में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए. एंड कैनॉट बी अ करंट एमपी और एमएलए. ठीक है? सो वंस सिलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, दे टेक्स ओथ. ओके, दे टेक्स एन ओथ इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट. तो एक बार जब सेलेक्ट हो जाते हैं वो, तो वो ओथ लेते हैं किसके सामने? यूजली एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, and they takes an oath to protect the constitution and do duties honestly. ठीक है? Term, of course, 5 years, but they can continue in office until a new person takes charge. Okay? The term is for 5 years, but a vice president, they can resign anytime by giving letter to the president, and that's what Jagdeep Dhankar just did. Right? He gave letter to President Murmu. Okay? अब स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर नेक्स्ट क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं. अब जैसे कि सबसे पहले तो एट प्रेजेंट देयर इज नो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट. सो अनलाइक द प्रेसिडेंट पोस्ट वेयर एन एक्टिंग प्रेसिडेंट टेक्स ओवर, तो ऐसा नहीं है कि जैसे अब देखो ना, कि अगर प्रेसिडेंट किसी रीजन की वजह से काम नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं. राइट? कि जब तक कि प्रेसिडेंट आ नहीं जाते प्रॉपर किसी भी रीजन की वजह से, तो तब तक वो ऑफिस संभालते हैं प्रेसिडेंट का. पर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी भी रीजन की वजह से रिमूव हो गए हैं, किसी भी रीजन की वजह से अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह के कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट आ जाए. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है? तो कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट नहीं है. But since the vice president is also chairman of Rajya Sabha, that position cannot remain empty. So there's a deputy chairman of Rajya Sabha. Deputy chairman of Rajya Sabha takes charge and runs the house in vice president's absence. Okay? तो vice president के absence में जो deputy chairman है, वो काम करते हैं, वो सारा चीजें देखभाल करते हैं. ठीक है? राज्यसभा के काम को देखते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज क्या कह रहे हैं कि दैट
a new vice president should be elected as soon as possible. Okay, constitution says that a new vice president should be elected as soon as possible, although there is no fixed deadline, but it is expected to be done quickly. Okay, तो जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए. And election commission of India is responsible for it. ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि वो फटाफट से जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट है वो उसको इलेक्ट किया जाए ताकि ये काम फटाफट हो. और एक और चीज स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि देखो जैसे कि अभी जगदीप धनखड़ उनका मिड टर्म उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जो रिमेनिंग पीरियड है उसको सर्व करें. नो, द न्यू वाइस प्रेसिडेंट विल नॉट जस्ट कंप्लीट द रिमेनिंग पीरियड, ही और शी विल get a fresh full 5-year term. ओके, तो ऐसा होता है. अब वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स है, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, ही और शी इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ओके, वाइस प्रेसिडेंट runs the parliament sessions, maintain peace and discipline, and vice president can also suspend any MP if they behave badly. So it's under Article 256. ठीक है, प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं. इफ द प्रेसिडेंट resigns or is absent, the vice president becomes the acting president. ठीक है, this is only temporary. ठीक है, कुछ दिनों के लिए, only until a new president is elected. और मैंने आपको बता ही दिया कि कास्टिंग वोट भी करते हैं. पर साथ ही साथ स्टूडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट के ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लिमिटेशन क्या है? वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट प्रिसाइड ओवर जॉइंट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट. मतलब कि जैसे अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जॉइंट सेशन है, ठीक है, दोनों मिलकर एक उनका जॉइंट सेशन है, तो उस केस में कौन प्रिसाइड करेगा? उस केस में लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड करते हैं. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं करते. एंड दे कैन नॉट डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल, ओनली लोकसभा स्पीकर डस. ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट को क्या रिमूव भी किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है. सो ऐसे ही नहीं कि मतलब कोई नॉर्मल प्रोसीजर हो, कोई नॉर्मल प्रोसेस की वजह से नहीं किया जा सकता. जैसे वाइस प्रेसिडेंट को कैनॉट बी इम्पीच लाइक द प्रेसिडेंट. ओके, सो व्हाट if a vice president is not doing their job properly or loses the confidence of parliament, the constitution allows the removal of vice president, but it's not same as the impeachment. ठीक है, रिमूवल तो है पर ऐसा सेम नहीं जैसे प्रेसिडेंट की तरह इम्पीचमेंट नहीं है. ठीक है, कैसे रिमूव किया जा सकता है? एक रिजोल्यूशन होता है. रिजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, क्योंकि वो राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं. तो राज्यसभा में ही वो जो रिजोल्यूशन है वो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है. एंड इट मस्ट बी पास्ड मोर देन 50% ऑफ करंट स्ट्रेंथ एक्सक्लूडिंग वेकेंट सीट्स. एंड आफ्टर दैट इट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है, और इस सभी प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले 14 डे नोटिस भी दिया जाना जरूरी है. सो यस, रिमूवल इज पॉसिबल बट इट रिक्वायर्ड बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टू अग्री. ठीक है, तो ये सारा कुछ था वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से हम थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने क्या देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिजाइंड ऑन 22 जुलाई 2025 and vice president is the second highest official and chairman of Rajya Sabha. Okay, they can resign anytime by writing to the president, और उसकी जगह पे no acting vice president is there but a deputy chairman takes over the Rajya Sabha duties. Right, election must be held as soon as possible, and vice president, when they are acting as chairman of Rajya Sabha, they can only vote in case of a tie. Okay, they can also act as president in case of emergencies and can be removed through a special resolution. ठीक है, तो ये सारा कुछ था, पूरा कवरेज वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग. ऑल राइट,
So, if you like this episode, share it with your friends, teachers, and remember, students, the more you understand how our democracy works, the better decision you will make as future leaders of India. Until next time, students, stay curious, stay kind, and stay informed. Bye bye.